Hello everyone, welcome to my The Bhagwa Show. Today again here with us Mr. Anirudh Tyagi, and today is our third podcast. And today we are going to discuss a very major series issue is going in India currently. So welcome Mr. Anirudh. Thank you very much. I just wanted to say like how are you? Like how things are going on? India is not good, Bharat is very good. So as you said, like India is not good and Bharat is good. So I just wanted to start this podcast with a serious note. Like, what is your opinion about Bharat versus India? See, Article 1 of the Constitution of India itself says India, that is Bharat. And the title note of the Constitution says it is the Constitution of India, not Constitution of Bharat. But as I said, Article 1 clarifies that India, that is Bharat. It does not say India means Bharat. So the qualifying adjective which has been used is Bharat for the main title, that is India. Now, to understand the very basic concept, it is required to go in the history. The word India was given by Herodotus in the 5th century BCE. In the 5th BCE, Herodotus was the historian on whose name the word history came into effect. And he said that those people who are on the east of Indus, they are Indians. The word India came from the river Indus. And the civilization which was there at that time was Indus Valley civilization. So this word India does not mean that India is a nation. It means a land which is on the east of Indus. There is a very much difference between land and a nation, land or a country. Suppose there is a piece of land, it cannot be considered as a nation until and unless it has four major essential things. Number one, that land must have a government, that land must have people, that land must have currency, that land must have its own foreign policy, that land must have its own electorate system. And until and unless the land will be devoid of these things, it will not be constituted as a country or a nation. Now, coming on the aspect of Bharat. Bharat has been the name of this particular land from the very beginning before the Herodotus came. It was mentioned in our Vedas, it was mentioned in Mahabharata, it was mentioned in Ramayana, and it was mentioned and still it is mentioned in our Upanishads. It is mentioned that starting from Himalaya to the Kanyakumari region, starting from the Arabian Sea to the Bay of Bengal, the land which comes is Bharat. There the word land is used. But that land had its own government. That land had its own legislative body. And for the reference, in the 12th century, there was Anubhav Mandapam. Anubhav Mandapam was the first parliament of the world. First parliament of the world this land was having. This land was having the first parliament in which the women were the representatives and they used to frame the laws. Number one. Number two, going in more more history. During the Ramayana time, who was the governing body? Correct. During the Mahabharata, who was the governing body? Which was the governing body? It was the states which had the governing bodies. And therefore, there is a very much difference between Bharat and India. Because India was a land, Bharat was a country. And therefore, its name should be India does not mean Bharat, but it is only and only Bharat.
That's actually nice things which you have just said. But currently, what's going on? Most of the people are against Bharat, and most of the rumors are coming out that just because the oppositions has named India as his committee, that's why Prime Minister is going to change India to Bharat. So, what's your opinion? I want to make reference to the Constituent Assembly debates. Many of us don't know what essentially the Constituent Assembly was. On 9th December 1946, the first meeting of the Constituent Assembly was sat in the Constituent in the Central Hall of the Parliament to discuss, and that Constituent Assembly drafted the Constitution of Bharat. तो जो आज भारत का संविधान है वो संविधान सभा ने बनाया है. Now this issue whether India should be named as Bharat or whether India should be named as India, it was discussed in the Constituent Assembly, and majority of the members were in favor of that this land should be known as Bharat, क्योंकि भारत के साथ इस देश का संस्कार जुड़ा है, भारत के साथ इस देश की आत्मा जुड़ी है. शब्द भारत भरत से आया है, तो इस देश के लोगों की, नागरिकों की श्रद्धा है भारत के साथ. और इंडिया नाम इज अ फॉरेन नेम टू दिस लैंड. लेकिन जब वोटिंग हुई तो मेजॉरिटी ऑफ द वोट्स वेंट फॉर द नेम ऑफ इंडिया, नॉट फॉर भारत. तो वहां पे पहली हार हो गई और वहां से ये आर्टिकल 1 में जोड़ दिया गया इंडिया दैट इज भारत. लेकिन अगर अब हम इतिहास के पन्नों को दोबारा पलटेंगे तो एक ही आवाज निकलती है कि इस भूमि का नाम भारत है. हम इंडिया माता नहीं कहते हैं, हम भारत माता कहते हैं. इसीलिए हम भारत माता के सुपूत होकर के इस पावन भूमि का नाम भारत से जाना जाए. इसी में गर्व है, इसी में विश्वास है, इसी में हमारी आस्था है. ये भारत ही है जिसकी 21वीं सदी लोहा मानेगी. Of course, like we are proud to be called as a Bharat citizen, and also just like recently, India has done a G20 summit, and I'm just happy to say to you all guys that Anirudh was a brand ambassador of G20 summit, and he was participants in a G20 summit. So I just wanted to know like what G20 outcomes will be for our coming youth. इस सवाल का मैं जवाब दूं उसके पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन करना चाहता हूं कि आपने पिछले सवाल में एक सवाल उठाया था कि ऑपोजिशन बार बार क्यों कह रहा है इसका नाम भारत नहीं होना चाहिए. Yes. क्योंकि इंडिया शब्द हमारी जबान पे है. अभी जब आपने कहा इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी तो आपने खुद इंडिया कहा. Exactly. तो इसीलिए ये तो हमें अपनी बोलचाल की भाषा में, क्योंकि मैं जब भी बोलता हूँ मैं भारत बोलता हूँ, मैं भारत का वासी हूँ, तो ये हमें अपनी शब्दावली में परिवर्तन करना होगा और ये भारत हो जाएगा. अब आते हैं दूसरे सवाल पे जो आपने भारत की G20 अध्यक्षता करी. Yes. देखिए भारत हमेशा से वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखता है, यानी पूरा विश्व एक परिवार है और G20 उसमें एक अहम भूमिका निभाता है. G20 20 देशों का एक समूह है जो कि विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, विश्व की सबसे बड़ी सुपर पावर देश हैं, विश्व की सबसे बड़ी विकसित और विकासशील देश का एक समूह है. अब G20 भारत के लिए महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि जिस समय पूरा विश्व उथल पुथल में है उस समय भारत का जो रोड मैप है, भारत के द्वारा जो विश्व को एक रोड मैप दिया गया, कोविड-19 के समय जो विश्वास दिया गया, उसने भारत को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि विश्व मित्र के रूप में विश्व के सामने लेकर के आया. तो भारत एक
विश्व मित्र के रूप में उभरा है, भारत पर दुनिया का भरोसा है। नंबर 1, ये बहुत बड़ा आउटकम रहा कि भारत पर पूरे विश्व का भरोसा है। अब चूंकि भारत का पूरे विश्व पर भरोसा है, इसीलिए इस G20 अध्यक्षता के दौरान भारत ने सर्वसहमति से, सभी 20 कंट्रीज की सर्वसहमति से एक G20 लीडर्स डिक्लेरेशन विदाउट एनी विटो पारित कर दिया। यह विश्वास है भारत पर। वो डिक्लेरेशन जो कभी बाली में नहीं पास हो पाया था रशिया यूक्रेन वॉर के कारण, वो ही डिक्लेरेशन बल्कि और कॉम्प्रिहेंसिव और प्रो पीपल और प्रो वर्ल्ड भारत के G20 अध्यक्षता में पारित हुआ और रशिया, अमेरिका जैसे देशों ने भी उसका समर्थन किया। यह है भारत की G20 अध्यक्षता का आउटकम। तीसरा सबसे बड़ा आउटकम जो रहा वो ये रहा कि G20 अध्यक्षता में भारत ने पूरे देश को जोड़ा। जन भागीदारी पूरे देश की रही। जैसा आपने अभी कहा कि मुझे भी G20 समिट में अपने विश्वविद्यालय को रिप्रेजेंट करने का अवसर मिला। ये उदाहरण है कि किस प्रकार से भारत की सरकार ने इस समिट को सिर्फ दिल्ली का समिट नहीं रखा बल्कि देश का समिट रखा। नंबर 1, नंबर 2, इस अध्यक्षता के दौरान पूरे देश में 200 से ज्यादा मीटिंगें करी गई। तो कनेक्टिंग द होल वर्ल्ड while connecting every citizen of Bharat is the fourth outcome of this G20 presidency। और पांचवी जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण आउटकम रहा इस G20 प्रेसिडेंसी का वो ये रहा कि ये अब G20 नहीं रहा, अब G21 हो गया है। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि जब G20 की बैठकें चल रही थी तो मुझे भी एक अवसर मिला कि मैं अपना सुझाव रख सकूं, और जो भी हमारे ग्रुप में लोग थे उन सभी ने सर्वसहमति से एक सुझाव रखा कि अफ्रीकन यूनियन को G20 का हिस्सा बनाया जाए। उसको सबसे पहले पारित किया गया और सभी 20 देशों ने उसको स्वीकृत करा और अफ्रीकन यूनियन G20 का एक परमानेंट मेंबर बन गया, सदस्य बन गया, और इससे G21 हो गया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ी और ताकत उसमें ताकत जुड़ी और एक ऐसे देश को जोड़ा गया जो बहुत पीछे था, अब वो भी इस विश्व की रेस में आगे आएगा, जीतेगा और विश्व पटल पर अपना भी वो परचम लहराएगा। ये भारत की अध्यक्षता में आउटकम्स रहे, फ्रूटफुल उपलब्धियां रही हैं। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें आपका योगदान ज़्यादा रहा, जिसमें कि अफ्रीकन को इस समिट में जोड़ा जाए। जी, हमारी तरफ से एक और हमें खबर सुनने की मिल रही है कि जो क्या कनेक्शन है खालिस्तान और जस्टिन ट्रूडो में। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया है, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और ये विषय युवाओं के लिए भी बहुत समझने का है। देखिए, आज क्या कहा जाता है कि हर एक बच्चे का सपना होता है कि वो बाहर जाके पढ़े, और आप देखेंगे सबसे ज्यादा बच्चे क्या कहते हैं कि हम कनाडा में जाके पढ़ेंगे। एक चीज। दूसरी चीज, जो आपका सवाल है कि जस्टिन ट्रूडो जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के और खालिस्तान का क्या कनेक्शन है, तो जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है उसमें समर्थन खालिस्तान के लोगों का है।
अगर वो समर्थन ना दें तो एक ही दिन में उनकी सरकार गिर जाएगी। तो जस्टिन ट्रूडो इज द प्राइम मिनिस्टर बिकॉज ऑफ द लीडर्स हु सपोर्ट खालिस्तान। ये डायरेक्ट कनेक्शन है, और ये कनेक्शन सिर्फ जस्टिन ट्रूडो के समय का नहीं है, उनके पिताजी के समय का भी है। उनके पिताजी की सरकार के समय भी खालिस्तान मूवमेंट उसी तरीके से चल रहा था। उस समय की प्रधानमंत्री भारत की श्रीमती इंदिरा गांधी जब वैंकूवर गईं तो उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री से निज्जर, जो कि आतंकवादी है, खालिस्तानी आतंकवादी है, उससे कहा कि ये भारत के लिए भारत का दुश्मन है, इसको भारत को दिया जाए। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। क्या कि कुछ ऐसे दावपेच उन्होंने लगाए कि हम उसको दे नहीं सकते। हम देंगे अगर भारत क्वीन एलिजाबेथ को अपना हेड ऑफ स्टेट मानेगा, यानी if they will be considering the queen, her majesty the queen Elizabeth, as the head of the republic of India, only then they will be given Niger to India, जो हम कभी स्वीकार कर नहीं सकते थे। हमने देश की स्वतंत्रता ली है, भारत की स्वतंत्रता, और भारत एक गणराज्य है जिसमें हमने हेड ऑफ द स्टेट अपने राष्ट्रपति को चुना है। ये देश स्वतंत्र है, ये देश आजाद हुआ है, और ये खालिस्तानी जो मांग रखते हैं कि पंजाब का वो हिस्सा खालिस्तान बनाएंगे, मैं इस माध्यम से कहना चाहता हूं, इस देश का युवा उन लोगों का साथ कभी नहीं देगा। और मैं उन लोगों से भी ये कहना चाहता हूं कि जो लोग अपने बच्चों को कनाडा भेजना चाहते हैं वो जागरूक रहें, क्योंकि कनाडा में हमारे बच्चे, कनाडा में हमारे निवासी अभी खतरे में हैं। और कनाडा और भारत के रिश्ते अभी ठीक नहीं चल रहे हैं, क्योंकि कनाडा आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन भारत खालिस्तानियों को और उन आतंकवादियों को जो खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ है, क्योंकि वो जिम्मेदार हैं 300 से ज्यादा लोगों, भारतीय लोगों की मौत के। हम उनको कभी माफ नहीं कर सकते। और ये खालिस्तान का जो ऑब्जेक्टिव है, ये भारत में तो कभी पूरा होगा नहीं, होने देंगे नहीं। Then what should be like the Bharat approach to resolve India-Canada issue? देखिए, भारत का सिर्फ एक कहना है कि कनाडा की सरकार खालिस्तानी समर्थकों को समर्थन देना बंद कर दे। अगर वो इतना कर देते हैं तो मुझे विश्वास है कि भारत और कनाडा के रिश्तों में दोबारा जो खटास आई है वो मिठास में तब्दील हो जाएगी। लेकिन ऐसा कनाडा करेगा नहीं, ये सरकार तो करेगी नहीं कनाडा की। तो बस यही भारत का कहना है कि आप मानवता बनाम आतंकवाद में से अगर मानवता चुनेंगे तो भारत आपके साथ है, और आतंकवाद चुनेंगे तो भारत के साथ आपके संबंध और खराब होंगे। So, like, it was a great discussion with you, Mr. Anirudh. So, like, if I ask you, like, in 20 or 30 words, what will be the conclusion of all India versus Bharat and G20 summit? What will be your answer? भारत की हमेशा से एक विश्वास रहा है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यानी सब सुखी हों, कोई न हो दुखारी। यही भारत का विश्वास है, यही भारत का कहना है। हम कभी आतंकवाद का समर्थन कर नहीं सकते, हम कभी लड़ाई का समर्थन नहीं कर सकते, लेकिन हम संप्रभुता, सुरक्षा और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। ये है भारत का अप्रोच। Thank you so much. Thank you so much, Mr. Anirudh, for your precious time. मैं आपका भी आभारी हूं कि आपने मुझे यहाँ बुलाया है। I hope we will
I will see you on the next podcast. धन्यवाद. Thank you.